Okay, so I can see lot of students being live. So we are almost towards the end of IFOA exams. We are still left with some of the subjects, but yes, for the main subjects, IFOA exams are over now. So definitely a big sigh of relief for every one of you who attempted exams in September 2024. So we actually forwarded a message with a form to every one of you, basically where you were supposed to fill that how much sure you are with respect to your attempt, because basically when you are more than 50% sure for your respective attempt, for your respective subject that you have attempted, so we recommend you to go for the next exam. So based on your responses only, we will be guiding you basically that how to proceed. There are some of the students who have not filled the form. Some of the students filled it initially only, so it's okay now. So since the session is open, so we would be taking your individual responses as well, and whatever you want to discuss, you can feel free to discuss with me, because this is a long diet. सबसे important चीज क्या है, देखो ये ना बड़ी डाइट है, तो बड़ी डाइट को आपको ये बहुत important मतलब it's very very important that you're utilizing your time effectively, because if you're not utilizing your time effectively, you will lose this diet. So it's important कि straight away आप अपनी preparation start करो. I know, देखो एग्जाम हम दे के आए हैं, हमें एक रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लगता है अभी तो मतलब एग्जाम खत्म हुआ है, अभी हम एक प्रेशर से हटे हैं, अब हमें न्यू एग्जाम पे मूव करना है, तो अभी टाइम है, देख लेंगे, अभी अक्टूबर में दिवाली है, उसके बाद और फेस्टिवल्स है, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे, या जब दिसंबर में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तब स्टार्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आप तब तक अपना डाइट, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ना इस डाइट में, ज्यादा एक्स्ट्रा मंथ्स होने का, वो आप लूज कर दोगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने पेपर कैसा अटेम्प्ट किया है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट अब क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं CS1 और CM1 के स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट करना चाहती हूँ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, there is a detailed planning session scheduled for tomorrow at 5 p.m. by Puneet sir. So he will be taking you through basically CS1 and CM1. So for all those who have given CS1, he will be guiding which all exams to pick next, and for all those who have given CM1, so he will be guiding next with respect to those exams. So it's a very very important session for all the beginners, so do attend that session. That's basically a detailed planning session for April and May 2025, basically that how you need to plan your diet. सो आज भी हम वो डिस्कस करेंगे, बट कल का जो बेसिकली सेशन है ना, दैट्स एक्सक्लूसिवली फॉर CS1 एंड CM1 स्टूडेंट्स. सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील डू मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दैट सेशन. आज का सेशन इज ओपन फॉर एवरीवन, बेसिकली where we are actually telling you ki which subjects you need to pick for, because there are higher subject students too, and we need to understand ki how your exams went and which exactly which subject you need to go forward. सो मैं आपको पहले एक रफ सिनारियोस, जनरल चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं, उसके बाद आपके जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड, देन आई विल टेक दोस. So let's talk about first about basically higher subject students. So देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है, सबसे बड़ी चीज कि ये बड़ी डाइट है, क्योंकि ये बड़ी डाइट है, अभी आपका इट्स जस्ट एंड ऑफ सितंबर, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो एक तरीके से पूरे हमारे पास 6 मंथ्स है, एंड 6 मंथ्स टाइम इज अ वेरी गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो अगर आपकी कोर प्रिंसिपल सीरीज सारी खत्म हो चुकी है, माइंड माई वर्ड्स, इफ यू आर डन विद योर इनिशियल 7 एग्जाम सीरीज, द नेक्स्ट एग्जाम दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इज CP1 और SP. सो CP1 बड़ा एग्जाम है, ठीक है, पूरे एक्चुअल एग्जाम्स के 13 एग्जाम्स में सबसे बड़ा एग्जाम हम CP1 को बोलते हैं. तो ये सबसे अच्छी डाइट है आपको CP1 प्लान करने के लिए, बिकॉज सितंबर वाली डाइट में हम लोग CP1 रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज उस डाइट में हमारे पास टाइम कम होता है. टाइम कम होने की वजह से CP1 के लिए जितने आवर्स और एफर्ट्स की प्रिपरेशन चाहिए होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, स्टूडेंट प्रेशर में आ जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
that if you are done with your core principal exams, you should definitely pick CP1. Now, some of the students come to us and they say, we have started CP1 long time back, or we have given CP1 3 years before, 4 years before, but at that time we were not able to clear, or we did not do any preparation, we left the exam in between. So now can you recommend which exam to go for? C. If you feel you have ample time and you can put, say, from now onwards till April diet, if you can put 3 hours on a daily basis, you can go ahead with CP1 and one of SP as well. The reason why I'm saying you to go for CP1 and one of SP is that obviously these are higher exams and the level of preparation is completely different for these exams compared to other exams. And at times when we are giving two exams, like when we are giving one CP1 and another SP, so it actually helps in clearing one of the exam, because your one domain gets very specific and you get actually a better advantage over others of that particular domain, and it helps you in clearing exam. See, if you are done with SP2, तो आपका combination pick कर सकते हो. You can go ahead with CP1 and SP1. If you are done with SP1, you can go ahead with CP1 and SP2, because maximum students SP1 और SP2 plan करते हैं, इसलिए मैं आपको ये combination बता रही हूँ. If you are working in general, आपने SP8 दिया है, SP7 दिया है, तो आप CP1 SP8 या CP1 SP7 का definitely combo, मतलब you should pick definitely 2 exams, because इस डाइट में आप सिर्फ 2 एग्जाम पिक कर सकते हो, उस वाली डाइट में आपके पास 2 एग्जाम पिक करने का ऑप्शन नहीं है. लेकिन CP1 तो आप पिक करो. SP आप अपना प्रिपरेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे देना है या नहीं देना, बट एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयर. और अगर आप ये सोचोगे कि हम लोग दिसंबर में रिजल्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा मुझे CP1 या कोई SP पिक करना चाहिए या नहीं चाहिए, आप उस टाइम पर मैं ये एडवाइस करूंगी मत पिक करो, बिकॉज CP1 के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए होती है वो नहीं हो सकती अगर हम दिसंबर या जनवरी ऑनवर्ड्स पिक करते हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते, डेफिनेटली आप पेपर क्लियर कर सकते हो, लेकिन जो एक काम माइंड में हमें प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, that can actually be done when we are, I mean, regularly studying. So one tip for passing higher subjects is that you need to be very consistent with your studies. So this was one combination of exams that are recommended to those students who are done with core principal series. Now coming to initial subject students, like see, if you are done with CS1 CM1, ठीक है, CS1 CM1 आपको पता है सबसे पहले हम लोग ये एग्जाम्स रेकमेंड करते हैं, CS1 CM1 CB1 CB2. तो कुछ स्टूडेंट्स का कॉम्बो है CS1 CB2 का, कुछ ने CM1 CB2 प्लान किया, कुछ ने सिंगल CS1 या सिंगल CM1 प्लान किया. तो अगर आपके मेन 4 सब्जेक्ट CS1 CM1 CB1 CB2 हो चुके हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपकी डाइट बड़ी है, देखो अब we have to guide you that कि you should pick CM2 के साथ CP2. CS2 के लिए देखो आपको रफली 4 months की प्रिपरेशन हमें CS2 के लिए भी चाहिए होती है. CS2 is one of the difficult exam of core principal series and it's becoming difficult day by day also. तो what you can do is you can pick CS2 for September 2025 डाइट. और अभी की डाइट के लिए, बिकॉज अभी बड़ी डाइट है और हम 2 एग्जाम्स निकाल सकते हैं, तो हम CM2 के साथ CP2 भी पिक कर सकते हैं, बिकॉज CM2 का एक्सेल पोर्शन विल कॉम्प्लीमेंट यू विद CP2 का एक्सेल पोर्शन. तो CM2 जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो उससे आपका CP2 निकलना बहुत इजी हो जाता है. उसके बाद जब हम CP2 प्लान करते हैं ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम लोग एक्सेल का वो जो एडवांस्ड हमें एक्सेल की नॉलेज चाहिए होती है ना, एट टाइम्स वो नॉलेज नहीं आ पाती हमारे पास जब हम CP2 बहुत टाइम बाद उठाते हैं. तो if you want to go for 2 exams, you can go ahead with CM2 and CP2 if you're done with CS1 CM1 CB1 CB2. कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने CS1 CM1 और CB2 दिया हुआ है, ठीक है, बट CB1 नहीं पिक किया. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि डेफिनेटली आपको इस डाइट में CM1 CB1 या CS1 CB1 उठाना ही उठाना. There are multiple students who filled form कि I gave basically I'm done with CS1 and CB2 and I gave CM1 this diet, तो which exam to pick next. तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपका CS1 हो चुका है, CM1 CB2 आपने दिया हुआ है और आपको रिजल्ट अपना पॉजिटिव लग रहा है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना CB1 के अंदर. CB1 आप छोटी डाइट में भी प्लान कर सकते हो, सितंबर में भी आप CB1 प्लान कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड विद CM2 एंड CP2 इन दिस डाइट. So it's up to you ki how you want to make combinations, but the only point at this point of time is that you need to understand that since we have months to prepare, we should pick those exams which are actually complementing with these months. It's important to understand that for which particular exam how much preparation is required, and we are actually using this time for our preparation.
We, if you think we will start after Diwali or we will start after results, we will start in January, that will not make sense for this diet. इस डाइट को सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का यही तरीका है कि आपको स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना होगा. अब स्ट्रेट अवे स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अभी से ही हम आपको रिग्रेस टारगेट्स या प्रेशर्स देना स्टार्ट कर देंगे. ऑब्वियसली वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभी आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, तो एक माइंड आपका भी काम नहीं है, तो इट्स ओके. वी विल बी गोइंग वेरी स्लोली विद इनिशियल क्लासेस. बट एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है तो आपके पास वीडियोस का एक्सेस आ जाता है. व्हेन यू हैव वीडियोस एक्सेस, whenever you are feeling bored, whenever you have ample time, whenever you don't want to study of your college or you want some something away from your office work, तो you can just pick one video and can start watching it. So अभी अगर आप 1 to 1.5 hours भी थोड़ा सा दे दोगे वीडियोस के लिए, एंड वीकेंड्स में बस लाइव सेशन अटेंड कर लोगे, बहुत ज्यादा भी कोई असाइनमेंट्स पे फोकस नहीं करेंगे, किसी चीज पे नहीं भी फोकस करो तो भी चलेगा, सो दैट एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड गेटिंग मोमेंटम ऑन योर सब्जेक्ट. सो इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हम लोग ब्रेक डालते हैं ना, तो होता क्या है कि पढ़ाई का मन खत्म हो जाता है, और हम 2 महीने बाद जब स्टार्ट करते हैं तो वो मोमेंटम जो हमें चाहिए होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो हम भूल जाते हैं. अभी क्या है, अभी आप लोग जस्ट एग्जाम देकर हटे हो तो पढ़ाई वाली फीलिंग के अंदर ही हो, तो इट्स बेटर टू यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली. और जिनका एग्जाम, जिसको देखो, I am telling you all these things considering कि you are hoping that you would be able to clear your exam in this attempt. So if you are more than 50% sure with respect to your exam attempted, definitely connect with us on individual level, decide on the exam and start preparing for your next exam. But अगर आपका exam बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, मतलब there were some of the students when we actually asked for the exam feedback, so they actually told us ki because of technical issues or because of non preparation or because of time mismanagement, some students said that they attempted just 50-55 marks. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने 50-55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सुन लो, अभी अपफ्रंट ही आप सुन लो, आपका पेपर नहीं निकलने वाला. और अगर आपको पता है कि आपका पेपर नहीं निकलने वाला, तो इट्स बेटर टू एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम अगेन. यू डोंट हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स. अपने आप को सेटिस्फाई मत करो इस चीज के लिए कि हाँ अभी मैंने अटेम्प्ट किया, शायद मार्किंग कम हो जाए, शायद एवरेज मेरी पार्ट बी के अंदर अच्छी हो जाए, मेरा पेपर निकल जाए. वो भूल जाओ आप. अगर आप 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो जो मर्जी कर लो, पेपर नहीं निकलेगा. तो अच्छा है, आपको अगर पता चल चुका है कि आपका पेपर नहीं निकलने वाला, तो इट्स बेटर टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम. और उसके साथ डिसाइड कर लो कि मुझे कोई छोटा एग्जाम पिक करना है या नहीं करना. जैसे अगर आपने कोई एसपी भी अगर प्लान किया है, फॉर एग्जाम्पल यू गिव SP1 और यू गिव SP2 and you feel that you have time but you're not sure with respect to your attempt and you don't want to move to another SP, so you can pick that particular SP again along with a small exam, like go ahead with CP2 और CP3. अगर आपका CP2 CP3 क्लियर है और आपने जैसे मान लो SP1 SP2 SP7 SP8 दिए, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक SP उठा लो. देना ना देना आप जैसे अपना फेब्रुअरी में डिसाइड कर लेना जब आपकी एग्जाम्स की लास्ट डेट होगी. सो यहाँ पर हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, सो दैट एटलीस्ट दैट मोमेंटम इज मेंटेन्ड एंड वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड दैट continuously pressure is there कि okay I need to watch videos, okay I need to attend the classes. Otherwise क्या होता है कि वो pressure खत्म हो जाता है, तो you start moving into irrelevant things and that momentum gets wasted and we actually lose that rhythm to study. So it's important to maintain the rhythm and do not hesitate in asking कि मुझे क्या करना चाहिए, because this session is for you guys only. मैंने अभी आपको एक generally कुछ doubts, कुछ concerns जो हमारे पास general maximum students के थे, मैंने सिर्फ अभी वो address करे. आपने कौन सा एग्जाम दिए, आपका क्या इंडिविजुअल बैकग्राउंड है, that will actually differ from student to student. So feel free to raise your questions and then we can discuss more with respect to your particular situation. So Diksha says, I have CM1 and CS1 cleared, but gave CS2 in this diet. CS2 did not go well. What subject shall I plan with the CS2? तो दीक्षा देखो, जैसे अभी आपको पता है, अभी मैंने ये सेम चीज रिपीट करी. See, if you know that the exam did not go well, सिंपल क्या करो, CS2 उठाओ दोबारा से, और CS2 के साथ आप एक छोटा एग्जाम पिक कर सकते हो, CB1 और CB2. अगर आपने आपको थोड़ा सा इजी रखना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि हम CB2 पिक करें या CB1 पिक करें. तो मैं पहले इस चीज के लिए क्लियर करती हूँ.
देखो CB2 और CB1 ना दोनों ही फिलर एग्जाम्स है। CS1 CM1 मेन एग्जाम होते हैं, CB1 CB2 आपके फिलर एग्जाम्स एड ऑन एग्जाम्स हो गए, बिकॉज इतना ज्यादा प्रिपरेशन हमें नहीं चाहिए होती। मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैन ऑल्सो वर्क फॉर CB1 एंड CB2। फिर CS2 CM2 अगेन ट्रिकी, और फिर बाकी के हायर एग्जाम्स तो आपको पता ही है ट्रिकी है, एक्सेप्ट CP2 CP3 विच आर अगेन फिलर एग्जाम्स। तो CB2 इज इकोनॉमिक्स, CB1 इज अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ये सबको पता है। अब मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर रही। CB2 में आपके पास अराउंड 45 मार्क्स के MCQs आते हैं, IFOA की बात कर रही हूँ मैं, रेस्ट सब्जेक्टिव। CB1 में 20 मार्क्स MCQs, रेस्ट सब्जेक्टिव। Major issue with CB1 is that you don't get anything from the co-reading. It's not same as CB2. Many students feel कि CB2 के अंदर जैसे हमारे पास 22 चैप्टर्स हैं, हम चैप्टर्स रीड करते हैं, हम चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास MCQs आते हैं और उसी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज CB2 इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, कि यू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और हाउ टू segregate with respect to different types of unemployment, or how to do numericals of aggregate demand, aggregate supply. So basically you understand the concept in CB2, and then you have lot of application style and knowledge based questions. But when it comes to CB1, I told you it's 20 marks MCQs and rest 80 marks are subjective, and that 80 marks subjective is very difficult to attempt because nothing comes from the co-reading. See, in co-reading you have say topic as different ways of establishing business. So we have partnership, company, limited company, LLP. But when in exam the question comes, they might give you a situation and they will ask you to comment कि अच्छा which form of establishment is better in this case. So in CB1 you get more of case study related questions, or more of questions which will not require direct book work, but will require actually you to understand the situation and use some of your knowledge to make points in the situation. So points building is actually required in CB1. तो CB1 एक तरीके से आपका बहुत छोटा सा वर्जन है CP1 का, मतलब CP1 डेफिनेटली इज वेरी हाई एग्जाम, SP थोड़ा सा लेस है CP1 से, और उनका छोटा सा सबसेट इज बेसिकली CB1, कि जैसे उनमें क्वेश्चंस आते हैं मोर ऑफ एप्लीकेशन एंड केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चन, स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में डालने हैं, कुछ भी जनरल नहीं है, कुछ भी बुक से नहीं आएगा, कुछ भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, सेम ऐसा CB1 में होता है। बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट यू रिक्वायर लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन CB1 प्लस अ गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश, बिकॉज 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है। और यूके के अंदर क्या होता है कि इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली द एग्जामिनर इज आस्किंग, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यूके इंग्लिश, दे माइट आस्क यू डिफरेंट थिंग एंड वी आर एक्सप्लेनिंग समथिंग एल्स। So you need a good hold over your English. You need a good hold over your writing skills as well, because you need to write 5 points for a 5 marks question. And if it's a 20 marks question, you are supposed to make 20 points. So that's the struggle area for CB1. So if you want to go for a lighter version, because Diksha CS2 already is difficult, go for CB2. And those who are done with the like CB2, they can go ahead with CB1. So I hope this answers your doubt, Diksha. And as I told in the starting as well, that we have one detailed session for all CS1, CM1 students tomorrow. So guys, do attend that session. Do not miss out that session. Okay, let's move to another question. Okay, so Sahil says, I had given CP1 in this diet. It went well according to me. I'm planning to give SP4, SP5 and SA4 after this. How should I plan it? So Sahil, SA4 आप क्या कर सकते हो? SA4 तो as of now I will not recommend you to give. If you feel that you are confident with your attempt of CP1, तो अभी आप क्या करो, अभी के लिए pick SP4. I will not advise you to pick 2 subjects at this time, because you've already given one major exam, and but in order to not to waste time, pick SP4. Reason being that around 5 to 6 chapters of CP1 and SP4 are same. So a lot of things are common in between. Basically the pension portion is common, so it will help you in understanding also. So as of now, pick SP4, and you should basically target that from September to December first week you are done with SP4 preparation. And once you get your result, and if the result is positive,
go for SP5, and by chance, God forbid, if result is not positive, so at least you can go ahead with CP1 and SP4 both. In this way, you will be able to utilize your time also. Plus, even if God forbid CP1 is not clear, at least you will not feel like this कि I wasted my diet, I will be giving SP4. So SP4 अभी उठाओ, रिजल्ट्स का वेट करो और उसके बाद SP5 उठाना, लेकिन ये मेक श्योर करो कि रिजल्ट तक आपकी SP4 की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए. Okay, next, Ananya says, I have cleared CS1, gave CM1 and CB2 in this diet. I attempted for around 90 marks in CM1, but I'm only sure about 40 to 60% about my answer. So, what should I do in this case? So, Ananya, अगर 90 marks attempt किया और फिर भी आप 60% sure हो कि मतलब 40 to 60% sure हो कि पेपर निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता, तो what you can do basically, गो फॉर वन सीबी, बिकॉज आपका CB2 ऑलरेडी आप कह रहे हो कि मैंने दिया हुआ है, तो CB1 गो कर सकते हो और CM2 और CB1 प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो इस पॉइंट पर आप. और बाय चांस अगर CM1 नहीं निकलता तो CM2 नेक्स्ट डाइट में कैरी फॉरवर्ड कर लेना और अभी सिर्फ CM1 और CB1 दे देना, एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, Paridhi says, I have passed CS1, CB2, gave CM1 this diet. I find stats more difficult. Should I give CS2 and any filler exams? CS1, CB2, गिव CM1. तो परिधि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप ये वाली डाइट को अगर देखो, CS1 हो चुका है, CB2 हो चुका है, CM1 आपने दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ CM1 में कितना श्योर है, उसके बाद आई वुड बी एबल टू बेटर कमेंट. तो हाउ मच श्योर आर यू इन CM1 विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड? You are pretty confident. So if you are confident, go for CM2 and CP2. अगर फिलर ऐड करना है तो अभी तो आपका ऑलरेडी CB1 बचा है, तो आप फिर CM2 और CB1 पिक करो ना परिधि. CS2 आप बाद में कर सकते हो. CS2 सितंबर वाली डाइट में सिर्फ एक एग्जाम पिक करना, सीधा अप्रैल का एग्जाम खत्म होते ही CS2 सितंबर में अटेम्प्ट कर सकते हो. हमारे पास टाइम रहेगा. अभी क्या है, अभी एक्सेल किया है आपने, CM1 ऑलरेडी दिया है, और क्योंकि एक्सेल एक तरीके से आपने कर लिया है और उसी का एडवांस वर्जन CM2 में आपका टेस्ट होता है, तो एक CB1 और साथ में CM2 प्लान कर लो. CS2 लेटर ऑन सितंबर 2025 में दे देना. सेम थिंग इज अनन्या. अनन्या, आई वुड रिकमेंड यू टू प्रिपेयर CM2 एंड CB1. सेम परिधि वाला ही केस है आपका भी. Go for CS2 in September 2025. Go for CM2 and CB in this diet. So जो भी आपने CB आपका रहता है, go for that particular CB plus CM2 in this diet, and next diet पे अपना CS2 दो, और अगर CB भी हो चुका है तो CM2 और CP2 दो. ये कॉम्बिनेशन अपना प्लान करो आप. Yeah. Guys, more questions. So it's good that you are interacting with respect to your personal circumstances. Guys, more question based on your individual exams that you have attempted. Because general चीजें हम लोग videos में भी address करेंगे. You will see more of videos coming from next week based on guiding which exams to go for. ये talk session सिर्फ और सिर्फ आपके individual subjects के basis पे discussion करने के लिए. So if you have any other questions based on the attempt that you gave, feel free to discuss. So basically, अगर मैं आपको एक quick recap बताऊं चीजों का, तो how it goes is, if you have given one exam, go for 2 exams in this diet. So if you have given a lighter exam like CS1, go for CM1 and CB2, or CM1 and CB1 in this diet. If you have given CM1, go for CS1 and CB2 or CS1 and CB1, provided that you have not cleared CS1, CM1, CB1, CB2. If you feel that you have cleared CS1, CB and gave one CM this diet, the next combination that you have to opt is CM2 plus one CB in case you are left with any CB. सो इस डाइट में CS2 उठाने की बजाय, बिकॉज देखो अगर आप CS2 उठाओगे ना तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ पाओगे आप इस डाइट में, और CS2 का क्या रह रहा है कि एट टाइम्स
मतलब पेपर इज मैनेजेबल, बट एट टाइम्स आईएफओई की तरफ से ही पेपर कम स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स, एंड बाय चांस अगर गॉड फॉरबिड 1% नहीं क्लियर होता CS2, तो आपको लगेगा ये पूरी डाइट हमने सिर्फ एक एग्जाम में वेस्ट करी और वो भी नहीं क्लियर हुआ, तो एक बहुत ज्यादा सेटबैक लग जाता है। तो इससे बेटर है पहले हम वो एग्जाम्स प्लान करें जिसमें चांसेस ऑफ क्लियरिंग भी ज्यादा है, प्लस जैसे अगर आप CM1 के बाद CM2 उठाओगे तो आपका एक्सेल भी फ्रेश है और आप मैनेज भी कर सकते हो दो एग्जाम्स इस डाइट में। CS2 आप सितंबर वाली डाइट में भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका CS1 CM1 CB1 CB2 हो चुका है, दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम प्लान करना है CM2 प्लस CB या फिर CM2 प्लस CP2 अगर दोनों CBs हो चुके हैं। CS2 इन सितंबर 2025। अगर कोर प्रिंसिपल एग्जाम सारे हो चुके हैं, गो फॉर CP1 प्लस 1 SP बेस्ड ऑन योर डोमेन। अगर CP1 नहीं उठाना, लास्ट डाइट में कोई SP दिया था, तो डेफिनेटली गो फॉर अनदर SP इन दिस डाइट अलोंग विद फिलर एग्जाम्स लाइक CP2 और CP3। अगर CP1 दिया हुआ है और कोई और एग्जाम्स के आप वेट कर रहे हो, तो 2 SP आप उठा सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि डेफिनेटली, जो मैं हायर सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग इतना श्योर नहीं होते, बिकॉज हायर सब्जेक्ट्स में एट टाइम्स 1 मार्क की वजह से भी हमारा पूरा सब्जेक्ट लूज कर जाते हैं। तो अगर एक बड़ा सब्जेक्ट जैसे CP1 आपने दिया हुआ है, तो एटलीस्ट एक SP उठाओ, रिजल्ट तक प्रिपेयर करो, रिजल्ट के बाद नेक्स्ट SP आप पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डोमेन। प्लस कोई फिलर एग्जाम अगर एड ऑन करना है CP2 CP3, फील फ्री टू एड ऑन जब अगर आपका वो नहीं है। सो एनी अदर क्वेश्चंस? मैंने जनरल एक रिकैप आपको दे दिया, जो भी आप कॉम्बिनेशंस पिक कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? So, okay then, if there are no questions, with this we wrap up for the day. Still, guys, I'm repeating, in case अभी आप नहीं पूछ रहे हो या आपको कुछ one to one discussion करना है, the entire team is there for your help. So, do connect with the team, do connect with your faculties also if required, and do start your preparation accordingly based on your attempt. और इन सारी चीजों में अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेपर नहीं अच्छा गया, तो उस चीज को आप लेकर चलो, वो प्रोबेबिलिटी भी आप लेकर चलो कि शायद पेपर नहीं निकल सकता, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द सेम पेपर अगेन प्लस वन स्मॉल एग्जाम अलोंग विद इट। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग April 2025 attempt. So that's it from my side for the day. Thank you everyone.